Yes. So very good morning. And as I have told you yesterday, sir, we were discussing about the imperfections in solids, where I very clearly tried to explain you people that, sir, solids, when they are formed, depending upon whether they are formed, whether the crystallization has occurred very fast or whether the crystallization has occurred extremely in slow rates, the defects can be talked about. That means if it is occurring very, very fast or even at moderate fast, there are 100% chances that there will be defect in the given solid. But if the given solid is crystallizing, okay, the crystallization is occurring at a very, very slow rate, in that case, we can say that the defects are going to be very, very less. Okay, so defects jab maine bataya, we clearly understood, sir, on a large scale we can divide our defects into two types, classify them into two types. One is your point defects and another one is your line defect. Does anyone has any problem in this? We No, have sir. one point defect and we have one line defect. If only at a lattice point, only around a lattice point, if there are any discrepancies, if there is any missing of particle, if there is any extra particle, something like this is happening, then we will call it as nothing but a point defect. If around an entire line we are seeing the defect, then we will call it as nothing but our line defect. So we are having two types of defects. Either it can be your point defect or it can be your line defect. Now, there I tried to make you understand that our point defects are again of few types. What are those? We tried to classify our point defects into three more classifications. Number one, we talked about the stoichiometric defects. And then I talked about impurity defect. And then the name is non-stoichiometric defect. If you people properly remember, then you will see when I told stoichiometric defect, I told you that the stoichiometry of the given compound will not be affected by this defect. कितने लोगों को याद है मुझे नहीं पता है. I am just repeating it once again. Just have a look. What we tried to say is, sir, due to the given defect, the stoichiometry of the compounds, that means the formula of the compounds is not going to change. The ratio in which the elements have reacted is not going to change. Say for example, मेरे पास था MnO2, तो Mn1 is to O2, तो Mn is to O 1 is to 2 है, वो डिफेक्ट एराइज होने के बाद भी 1 is to 2 में ही रहेगा. That is not going to change. Is it understandable, sir? समझ में आया हम लोगों को कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. जहां पे Yes, sir. हमारा स्टोइकोमेट्री इफेक्ट नहीं होता है उसे हम लोग स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलते हैं. जहां पे स्टोइकोमेट्री इफेक्ट होता है उसे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं. सर वो भी समझ लेते हैं. ये जो हमारा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, जहां पे स्टोइकोमेट्री इफेक्ट होता है, वो कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऑक्साइड है Fe2O3, एक मेरे पास given compound है Fe2O3, and in there a defect has arisen, and due to this defect what happened is the ratio of the compound, in this the ratio of iron is to oxygen, which was 2 is to 3, now that will become, say for example, Fe1.9 is to O3. तो क्या हम लोग आज तक कभी भी ऐसा कंपाउंड देखे हैं Fe1.9O3? No, sir. नहीं देखे हैं. बट अब आप लोग देखेंगे. अब आगे जाके आप लोग देखेंगे, we will see that elements having defects, okay, will
even sometimes have a change in their stoichiometric ratios. Such type of defect जो एक कंपाउंड का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो को ही चेंज कर देगा, we will call it as nothing but a non-stoichiometric defect. We will call it as nothing but a non-stoichiometric defect. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Very Yes, good. sir. वेरी गुड बेटा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। सो in the stoichiometric defects, what are the things which we are having? So as I told you already, under point defects we are seeing stoichiometric defect, impurity defect and non-stoichiometric defect, जिसमें से सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं stoichiometric defect। So stoichiometric defect comes under where, sir? Comes under the point defect. Who among you can tell me stoichiometric defect का दो और नाम बताया था? कौन बताएगा मुझे? सर फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। No. इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक। Thermodynamic. Very good. It is otherwise called as intrinsic defect or it is called as thermodynamic defect. Very good. It is called as intrinsic defect or thermodynamic defect. याद रखिएगा, because this is where people will not ask you what is a stoichiometric defect. They will say in an intrinsic defect will the formula of the compound be affected. अब तुम लोग सोचने लगोगे भाई ये intrinsic defect कहाँ से आ गया, right? So that is why intrinsic defect is otherwise nothing but a stoichiometric defect, और यहाँ पे stoichiometry बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके राइट। सो अंडर स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट फिर से हम लोगों का दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आते हैं। वन इज योर वैकेंसी डिफेक्ट एंड द अदर वन इज योर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट? कल ही मैंने बताया था सर, जहां पे भी हमारा क्रिस्टल लैटिस में कोई लैटिस पॉइंट है और एक गिवन पॉइंट से एक गिवन लैटिस पॉइंट पे क्या हुआ सर, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है हमारा वो मिसिंग हो गया। एक गिवन लैटिस पॉइंट पे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गया बेटा, मिसिंग हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। तो क्या आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है सर ये पॉइंट डिफेक्ट है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये एक पॉइंट डिफेक्ट है, दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, and this is creating a vacancy. एक constituent particle यहाँ से missing हो गया बोलने से यहाँ पे क्या create हो गया, vacant space create हो गया, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, vacancy defect बोल रहे हैं। And during a vacancy defect क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? डेंसिटी को क्या होता है, डिक्रीज हो वेरी गुड सर, डेंसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ अ वैकेंसी डिफेक्ट। बहुत अच्छा बात है सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं सर इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या है। ओके, सो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट मतलब तुम्हारा हर एक लैटिस पॉइंट पे तुम्हारा ओके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो रहेगा, बट एक प्रॉब्लम है that along with the constituent particles at the lattice points कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम एलिमेंट के सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बट कुछ एक्स्ट्रा आ जाएंगे कहां पे, हमारे इंटरस्टेशियल साइट में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट बोलते हैं। फिर से सर ये इंटरस्टेशियल डिफेक्ट जो है कहां एराइज हो रहा है, एक पॉइंट में एराइज हो रहा है। ऑब्वियसली ये भी एक पॉइंट डिफेक्ट है। तो यहां पे मैंने क्या बताया था सर, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा। बहुत ध्यान से देखिए, इंक्रीज होगा क्योंकि सर यहाँ पे मास इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सर क्या हमारे आयोनिक सॉलिड्स में
सर क्या हमारे आयोनिक सॉलिड्स में वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टेशियल डिफेक्ट हो सकता है क्या? तो समझते हैं हम लोग। देन द आंसर इज अ बिग नो, नहीं होगा। तो एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी, क्यों नहीं होगा? हमें तो समझ में नहीं आया, दिस इज स्ट्रेंज। अरे डिफेक्ट कोई भी सॉलिड में होना चाहिए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आयोनिक सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट नहीं होगा? समझते हैं क्यों। देखिए, मेरा एक आयनिक सॉलिड है, मतलब वहां पे एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रहते हैं। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? Yes, वहां sir. पे Yes, sir. Yes, sir. कैटायन एंड एनायन रहते हैं, इसीलिए मेरा आयनिक सॉलिड जो है वो न्यूट्रल रहता है। दैट इज द रीजन व्हाई माय आयनिक सॉलिड इज न्यूट्रल। नाउ हैव अ लुक, अगर if vacancy defect arise हो रहा है, one of the ion will miss, and if one of the ion is missing, there will be a vacancy created. Sir, ionic solid में vacancy defect तो हो गया नहीं, प्रॉब्लम क्या हुआ? इफ वन आयोन इज मिसिंग, द कंप्लीट सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे कैटायन मिसिंग करवा दिया मैंने, द कंप्लीट सॉलिड इज बिकमिंग नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या हमारे घर में कॉमन सॉल्ट को मैं यूज करता हूं तो कॉमन सॉल्ट क्या चार्ज्ड हो जाता है? मैग्नेट लाने से वो अट्रैक्ट हो जाता है, मैं करंट कैरिंग वायर को उसके पास ले जाने से वो डिफ्लेक्ट करने लगता है, या कुछ भी ऐसा होता है सर? No, No. sir. नहीं होता है। नो दैट सर। मीन्स आयोनिक सॉलिड्स में डिफेक्ट्स ऐसे अराइज होना चाहिए कि उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए। क्या मेंटेन होना चाहिए सर? इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए। सर द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी of an ionic compound should not be disturbed. And number 2, हम लोग इसको किसके अंडर पढ़ रहे हैं? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में। That means stoichiometry of the compound should be unhindered, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो चेंज नहीं होना चाहिए मतलब नहीं नहीं नहीं, वैकेंसी डिफेक्ट नहीं हो सकता, अकेले वैकेंसी डिफेक्ट नहीं हो सकता। इन द सेम वे अभी एज्यूम करते हैं सर वैकेंसी डिफेक्ट नहीं हुआ, चलो एक काम करते हैं हम लोग ना, देखते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्यों नहीं होगा। फिर से वही काम देखिए, अगर मैं एक एक्स्ट्रा Cl माइनस आयन को बीच में ले आया तो क्या हो गया सर? यहाँ पे द ओवरऑल कंपाउंड का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर से डिस्टर्ब हो गया। फिर से क्या हो गया बेटा? डिस्टर्ब हो गया। यस और नो? Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फिर से मेरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गया। और मैंने पहले ही बताया सर, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आयोनिक सॉलिड्स में कभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं हो सकता, तुम्हारा आयनिक कंपाउंड को न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा। तो अकेले इंटरस्टेशियल डिफेक्ट भी आपका आयनिक सॉलिड्स में नहीं हो सकता। सो सर वी हैव अंडरस्टूड व्हाई only vacancy defect and only interstitial defect cannot be present in ionic solids, because sir if they are arising in ionic solid, they are disturbing the electrical neutrality of the ionic compound. That is the reason why vacancy and interstitial defect is not possible in ionic solids. तो सर, तो क्या आयनिक सॉलिड में होगा ही नहीं पॉइंट डिफेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। सो सर क्या आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट्स होता है, बट ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफेक्ट होता है, हम लोग उसको पढ़ेंगे अभी। सो वो कौन से स्पेशल टाइप ऑफ डिफेक्ट है, चलिए देखते हैं। अब सोचो सर, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गिवन सॉलिड है, चलो एक मस्त वाला मेरे पास सॉलिड है। सर आपने बोला वैकेंसी डिफेक्ट अकेले नहीं हो सकता है, तो एक काम करते हैं सर, हम लोग ना क्या करते हैं ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे है। अब मैंने क्या किया सर, एक जगह से एक नेगेटिव पार्टिकल को हम लोगों ने हटा दिया, उसने उस जगह पे क्या क्रिएट किया? वैकेंसी क्रिएट किया।
और उसको ले जाके एक दूसरे जगह पे हम लोगों ने लेके डाल दिया, और इस जगह पे इसने क्या डिफेक्ट का लेके आया सर? इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। और इस जगह पे क्या आ गया तुम्हारा? वैकेंसी डिफेक्ट। Vacancy defect. अब अच्छे से देख के बताओ, डिड द न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड गेट अफेक्टेड? No, sir. No, sir. नो, नो सर। बिकॉज एक जगह से जो चार्ज मिस हुआ वही चार्ज जाके दूसरे जगह ऑक्युपाई किया, तो कंपाउंड का न्यूट्रलिटी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। एज द न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड did not get disturbed, obviously ये डिफेक्ट हमारे आयनिक सॉलिड्स में अराइज हो सकता है। तो इस डिफेक्ट को मैं क्या नाम दे सकता हूं? सर ध्यान से देखिए सर, ये डिफेक्ट ना एक वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टेशियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। एक जगह से वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, एक जगह पे इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो सर क्या मैं इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट बोल सकता हूं कि नहीं? जरा देख Yes, के sir. बताओ तो मुझे। सर एक जगह होना Yes, चाहिए, sir. वो बेचारा वहां से मिसिंग होके दूसरे जगह पे चला गया, ये डिसलोकेट हो गया। सो दैट इज व्हाई वी कैन कॉल इट एज dislocation defect. We can call it as dislocation defect, or we can simply call it as nothing but a combination of your वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। कितना मजेदार बात है। तो इसी को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, दैट इज आवर फ्रेंकल डिफेक्ट। Okay, so sir, what is Frankel defect? Sir, Frankel defect is a combination of vacancy defect and interstitial defect. Why a combination, sir? Because in an ionic compound the electrical neutrality should always be maintained. In order to do that, sir, this defect is otherwise called as dislocation defect. Here a constituent particle will be missing from one side and it will be occupying some other interstitial site. तो जहां से मिसिंग होता है वहां पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करता है, जहां पे जाके ऑक्युपाई करता है एक इंटरस्टिशियल साइट, वहां पे एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट करता है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, will this defect affect the density of a compound? नो सर। No, sir. No, sir. नो सर। A big no, because sir mass of the compound अभी भी उतना ही है सर, volume of the compound अभी भी उतना ही है सर, तो किस हिसाब से आप बोल रहे हैं डेंसिटी चेंज होगा? डेंसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्या हम लोगों को फ्रेंकल डिफेक्ट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बहुत ही आसान सा डिफेक्ट है। चलिए, अब फ्रेंकल डिफेक्ट भी एक पॉइंट डिफेक्ट का ही टाइप है। तो सर पॉइंट डिफेक्ट का आयनिक सॉलिड्स में जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जनरली योर फ्रेंकल डिफेक्ट। चलिए, अब सर ये फ्रेंकल डिफेक्ट किस टाइप के कंपाउंड शो करते हैं? सर कंडीशन क्या है? कौन सा आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड्स तो शो करते हैं सर, कौन सा आयनिक कंपाउंड स्पेशली फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है? तो याद रखिए, Frankel defect is shown by those ionic compounds जिनमें लार्ज डिफरेंस रहता है इन देयर साइज। ओके, उनके आयन के साइजेस के बीच जब लार्ज डिफरेंस रहता है, मतलब कैटायन बहुत छोटा एनायन बहुत बड़ा, अगर ऐसा डिफरेंस है, नहीं तो कैटायन बहुत बड़ा एनायन बहुत छोटा। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, large difference between cation and anion, only in that case, okay, we will see Frankel defect. Now if I ask you a same question, if I ask you a beautiful question, right, sir, tell me the condition, okay, for the Frankel defect to arise, in which type of solid will it arise? Sir, it will arise in those solids where the cation and the anion will have a large difference in their size. क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है?
No, sir. No, sir. तो याद से, ध्यान से हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। ध्यान से याद रखिए, जिंक सल्फाइड, AgCl, AgI, ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है जो कि ट्रम्प कार्ड के जैसा बाहर आता है, जिसको मैं बताऊंगा इसके बाद। ओके, अभी नहीं बताऊंगा उसके बारे में, जस्ट इसके बाद वाला जो डिफेक्ट आएगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखेंगे, जिंक सल्फाइड, AgCl एंड AgI, ऑल द 3 आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ योर फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या सबको ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग देखते हैं एक और टाइप ऑफ डिफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। देखते हैं क्या है स्कॉटकी डिफेक्ट, जस्ट हैव अ लुक। सर, आपने बोला कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ओके यहाँ पे अकेले वैकेंसी डिफेक्ट या फिर अकेले इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नहीं हो सकता है। सर, अगर मैं ऐसा एक चीज कर दूं तो क्या? सर, अगर हम लोग एक एनायन को यहां से मिस करवाए, वहीं गिवन सॉलिड में कहीं एक जगह पे एक कैटायन भी मिस करवा देंगे, तो ये तो अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ। यस, यही तो है हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या बताता है? स्कॉटकी डिफेक्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट बट अ स्पेशल टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट? सर, यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिसिंग होंगे, दे विल ऑलवेज बी मिसिंग इन पेयर्स। ओके, हमेशा कपल बना के भागेंगे, जोड़ी बन के भागेंगे ये लोग। एक पॉजिटिव चला गया तो एग्जैक्टली एक नेगेटिव भी वहां से निकल के चला जाएगा। ऑलवेज इफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस missing will be exactly equal to the number of negative charges missing and hence they will maintain electrical neutrality। बताइए कितने लोगों को समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं ना सर? Yes, this is a special type of vacancy defect जहां पे number of cations missing should be equal to the number of anions missing. In that case, we can call it as a Schottky defect, which is a special case of vacancy defect. तो अब आता है बात कि सर, क्या हमारे स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी इफेक्ट होता है? Yes, No, sir. sir. Yes, sir. Yes. अरे नो सर, क्यों बेटा? पक्का होता है, क्योंकि यहाँ पे दो दो आयन मिसिंग है, ऑब्वियसली उनका मास चला गया, तो मास डिक्रीज हो गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जिसने भी नो सर बोला, वो पक्का ये सोच के बोला अभी अभी कि सर क्या आपने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में बोला? हाँ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इफेक्ट नहीं होता है, वेरी गुड। बट सर, डेंसिटी इफेक्ट होता है कि नहीं? डेंसिटी पक्का इफेक्ट होता है। क्या आप लोगों को समझ में आया? Yes, Yes, sir. 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 वेरी गुड, वेरी गुड, कितना सिंपल है। देखिए, अब आता है क्वेश्चन कि सर जरा बताइए हम लोगों को कि स्कॉटकी डिफेक्ट किस टाइप के कंपाउंड दिखाते हैं? तो ध्यान से याद रखेंगे, एज दे हैव टू गो इन पेयर्स। एक कैटायन जाएगा तो एक एनायन जाना है, क्योंकि ये पेयर्स में जाते हैं, इसीलिए जनरली व्हेन द साइज ऑफ द कैटायन एंड द साइज ऑफ एनायन आर ऑलमोस्ट सेम, when size of cation and anion are almost same, okay, when the size of cation and anion are almost same, in such a case we can see Schottky defect, where cation and anion will be missing in pairs in equal numbers। क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को? Yes, sir. तो इसका भी Yes, sir. तीन एग्जाम्पल्स याद रखेंगे हम लोग। चलिए याद करते हैं कौन कौन से हैं। सर, NaCl is an example, KCl is an example
and CSCl, that is cesium chloride is also an example. अब मैं बताता हूं उस ट्रम्प कार्ड के बारे में। हम लोग सब ट्रम्प कार्ड्स खेले हैं, हमें एक पता है सर, हमें पता है कि बिक्सो आ जाएगा तो वो किस में जीतेगा, हमें पता है गोल्डबर्ग आएगा तो वो किस में जीतेगा, राइट। उसी तरह से हमें पता है कि एक कंपाउंड ऐसा है AgBr जो कि दोनों स्कॉटकी डिफेक्ट एंड एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट शो कर सकता है। ये याद रखेंगे। AgBr is an exception which shows both Schottky and as well as your Frankel defect। बहुत ही ध्यान सर से याद रखेंगे। बोलो सर, सिल्वर ब्रोमाइड भी तो दोनों से शो करता है ना सर? भैया, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड ही तो है बेटा। AgBr silver bromide, yes or no? So silver bromide is the trump card. It acts or it shows both Frankel and as well as your Schottky defect। क्या हम लोगों को ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो अभी देखिए हम लोगों ने पॉइंट डिफेक्ट्स में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स देख लिए। ओके, ये वो सारे डिफेक्ट्स थे जहां पे स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज नॉट चेंजिंग। ओके, तो देखिए कौन कौन सा देखे हम लोग। सर हम लोगों ने सबसे पहले देखा वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा देखा इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। सर ये दोनों नॉन आयनिक कंपाउंड्स में सिर्फ होते हैं। चलो उसके बाद हम लोगों ने देखा आयनिक कंपाउंड के लिए फ्रेंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट को हम लोग अदरवाइज बोल दिया डिसलोकेशन डिफेक्ट, और फिर आया हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट जो कि वैकेंसी डिफेक्ट है बट विद अ ट्विस्ट, जहां पे कैटायन एंड एनायन विल बी मिसिंग इन पेयर्स। ओके, उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ा और हम लोगों ने देखा हम लोग अभी देखने वाले हैं दैट इज पॉइंट डिफेक्ट्स में सेकंड टाइप। बोलो शुभम। सर टेम्परेचर के साथ तो इन दोनों का डिफेक्ट का कोई लेना देना है सर? ओके, ये हम लोग आगे जाके वैसे पढ़ने वाले हैं। ओके, सो टेम्परेचर में एक्चुअली जो होता है तुम लोगों का, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर आपका, व्हेनेवर यू आर हीटिंग अ गिवन सॉलिड, मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हेन वी आर ट्राइंग टू हीट अ गिवन सॉलिड, उन केसेस में वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है बिकॉज अपने लैटिस पॉइंट से कुछ कुछ पार्टिकल्स जो है वो मिसिंग हो जाते हैं, जिसके वजह से वहां पे एक वैकेंसी डिफेक्ट आ जाता है। ओके, दैट इज वन थिंग। एंड टेम्परेचर के साथ मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, इसके आगे पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। सो बंदिता पूछ रही है हम लोगों को, सर इन स्कॉटकी डिफेक्ट, नॉट इफेक्ट, डिफेक्ट, कैन मोर देन वन पेयर ऑफ पार्टिकल्स बी मिसिंग? 100%। एक पेयर नहीं, thousands of pairs will be missing. You won't believe me, I will tell you one very nice factor। चलो क्योंकि तुमने पूछा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूं। अगर मैं एक NaCl क्रिस्टल लेता हूं, ओके, एक 1 सेंटीमीटर क्यूब साइज का, से फॉर एग्जांपल मैंने एक NaCl का क्रिस्टल लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब का, कहां पे? रूम टेम्परेचर में मैंने ले लिया। तो तुम लोग देखोगे एक 1 सेंटीमीटर क्यूब जो साइज का एक NaCl क्रिस्टल है, वहां पे अराउंड 10 टू द पावर ऑफ 6 स्कॉटकी पेयर्स जो है वो मिसिंग होंगे। मतलब 10 टू द पावर 6 पेयर्स, मतलब 10 टू द पावर 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 आयंस मिसिंग होंगे। सोचो सर 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सोचो सर कितना छोटा होता है 1 सेंटीमीटर साइज का एक क्यूब। इतना साइज का मैं अगर एक NaCl क्रिस्टल लेता हूं तो उसमें 10 टू द पावर ऑफ 6 पेयर्स मिसिंग होंगे। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है स्कॉटकी डिफेक्ट किस रेंज में होता है, या डिफेक्ट्स किस रेंज में होते हैं? यस सर। ओके, ये अच्छे से आप लोग देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, जिसे मैं बोलता हूं इंप्यूरिटी डिफेक्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? इंप्यूरिटी डिफेक्ट बोलते हैं।
सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट? से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल है, ओके मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा क्रिस्टल है, एक आयोनिक सॉलिड है मेरे पास, से फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास NaCl का क्रिस्टल, से फॉर एग्जांपल एक Na+Cl- Na+Cl- ऐसे मेरे पास एक क्रिस्टल है। I told you, Divakar, AgBr is an exception because it shows both Frenkel and as well as Schottky defect. Okay, the ratio of cation is to anion, the size का ratio जो AgBr का ऐसा है कि वो Frenkel defect भी शो कर सकता है और दूसरे साइड से वो स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो कर सकता है। यही एक ऐसा कंपाउंड है जो दोनों शो करता है। ओके, अब ध्यान से देखिए इंप्योरिटी डिफेक्ट है क्या। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्यूटीफुल सा Na+ क्रिस्टल था, इस क्रिस्टल में क्या हुआ, एक Na+ मिस हो गया और उस Na+ के जगह पे क्या आ गया, एक इंप्यूरिटी आ गया। इंप्यूरिटी का मतलब क्या है, उस क्रिस्टल में जो भी कैटायन एनायन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनके अलावा अगर कोई अदर मटेरियल आ जाएगा तो उसे हम लोग इंप्यूरिटी बोलेंगे। ध्यान से देखिए सर, व्हाट इज इंप्यूरिटी? सर हमारा जो गिवन सॉलिड है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे इस गिवन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स Na+ एंड Cl- है, इस गिवन कंपाउंड में, इस गिवन सॉलिड में कोई बाहर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गया, से फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्सियम आ गया, स्ट्रॉन्सियम 2+। अब देखिए स्ट्रॉन्सियम जो आया इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2, लेकिन जो Na+ मिसिंग हो गया उसके ऊपर चार्ज कितना था, +1। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक Na+ ऑलरेडी गया था, एक और Na+ चला जाएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक और Na+ चला जाएगा। अब सोचिए वही अगर स्ट्रॉन्सियम 2+ के जगह पे एल्यूमिनियम 3+ आता, अगर स्ट्रॉन्सियम 2+ के जगह पे एल्यूमिनियम 3+ आता तो क्या होता सर, और एक जाता और एक Na+. मतलब 2 और Na+ चले जाते। तो ध्यान से देखिए सर हो क्या रहा है, एक्चुअल में स्ट्रॉन्सियम 2+ आ रहा था, 2 Na+ चले गए, कितने Na+ चले गए, 2 Na+। तो स्ट्रॉन्सियम बेचारा आया, एक ही Na+ का जगह ऑक्युपाई कर पाया, लेकिन दूसरा Na+ का जगह क्या हो गया, वैकेंट हो गया कि नहीं। तो ऑब्वियसली ये एक टाइप का वैकेंसी क्रिएट कर रहा है कि नहीं सर? यस सर। Yes, so impurity defect, okay, arises when a particle or an ion which is other than the constituent particle is occupying the lattice or the crystal. In such a case, vacancy is created at some other spot. ओके जो मेरा स्ट्रॉन्सियम आया वो एक ही स्पॉट ऑक्युपाई कर सकता है, बाकी स्पॉट जो है वो वैकेंट रहेगा। ओके सो इस पर्टिकुलर केस में जितने स्ट्रॉन्सियम आएंगे उतने वैकेंसीज क्रिएट होंगे। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes. एक स्ट्रॉन्सियम आया तो एक Na+ तो गया था, लेकिन इस स्ट्रॉन्सियम का चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए एक और Na+ को जाना पड़ेगा। सो इन दिस केस जितने स्ट्रॉन्सियम आयंस आएंगे उतने वैकेंट
पॉइंट्स क्रिएट होंगे, राइट? सो दिस इज वन मोर टाइप ऑफ डिफेक्ट where some other constituent particle means हमारे लैटिस में जो constituent particles हैं उसके अलावा उससे अलग कोई other constituent particle आ जाएगा और वो electrical neutrality जैसे भी maintain करने के लिए कुछ ions missing हो जाएंगे, तो इसे हम लोग बोल देंगे impurity defect। कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड।